My dear students, today we will discuss chapter 9 class 8 mathematics, that is algebraic expression and identities. Okay, and before starting the exercise we will discuss a lot of basic things. Okay, and this is very important concept for the further studies and different competitive exams also. Okay, at 8 level many students are giving the Navodaya school exams and Sainik school exams also. So in that exams this chapter is most important, and in 9th and 10th this is very important. This is the basic. If you are not understand now, then it will face the difficulties in 9th and 10th definitely. Okay, so this is my humble request to you. Please watch full videos and concentrate on the particular point. Okay, then you can understand very well. Okay, if you watch full videos, that you will be learn all the things and you will understand very easily. Okay, so let's start the things. First one, we understand what is algebraic expressions. Okay, so what is algebraic expression? Expressions or equation. In these two things a little bit difference is there. Okay, generally students are confused. The students cannot identify the given equations or given expression is an algebraic expression or not. Okay, so simply algebraic expression means the expression which is given in the form of constant numbers and variables. Okay, variables means x, y, z, a, b, c, p, q, r, m, n, o, p. Okay, all these the alphabetic we use as a variable, and constant means all the real numbers. Real numbers means there may be positive numbers, there may be a negative numbers, there may be a rational numbers, there may be a decimal numbers. Any kind of numbers are there means all numbers are called real numbers. And it is a combination of variables and constant values. Okay, but expression is there, so there is no equal to signs. Okay, because in the previous chapter means I think chapter number 4, that chapter name is simple equations in two variables. So simple equation in two variable, in that one we discuss simple equations. तो वहाँ पे equal to sign था. इक्वेशन जब हम डिस्कस करते हैं तो इक्वल टू का साइन होता है, लेकिन जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे या एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे तो यहाँ इक्वल टू का साइन बीच में नहीं होगा. जैसे मैं एक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको. सपोज 2x² + 3, अगर सिंपली अगर मैं इतना लिखता हूँ 2x² + 3, तो ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा. लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ये एक इक्वेशन बन जाएगा. अब ये सिंपल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये डिपेंड करेगा वेरिएबल की डिग्री कितनी है, तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. लेकिन अगर हम यहाँ से इक्वल टू साइन हटा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंपली एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, है ना. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि इसमें हमारे पास वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर का कॉम्बिनेशन होगा, है ना. एक से ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं, है ना, 2-3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, है ना. जनरली 2 और 3 वेरिएबल से ज़्यादा हम कंसीडर नहीं करते हैं. हमारे टेक्स्ट बुक में भी इसी लेवल के क्वेश्चंस अवेलेबल है और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. बट यहाँ पे ध्यान हमें देना है कि एक्सप्रेशन को पहचानना है हमें. ठीक है, अब एक्सप्रेशन को अगर हम पहचान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. क्लियर. अब हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट को समझते हैं. बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, उनका कोएफिशिएंट क्या है और फैक्टर्स क्या है ना. जनरली यहाँ पे हमारी बहुत मुश्किल हो जाती है. तो अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, टर्म्स. ओके, नंबर 1 टर्म्स एंड नंबर 2 फैक्टर्स एंड नंबर 3 कोफिशिएंट. ओके, तो ये 3 चीजें हम अब डिस्कस करने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं. टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं. तो इस तरीके से हम तीनों चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करेंगे. हम कोई भी एक एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हैं इनके लिए, है ना. एक्सप्रेशन हमारा कैसा भी हम ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन अपने मन से ले सकते हैं. आप भी कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो. 4x² y + 3y² x + 5.
ये एक हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कहीं पे भी इक्वल टू का साइन यूज नहीं हुआ है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, अब हमें इसमें देखना है कि टर्म्स क्या है और उसमें फैक्टर क्या है और उनके कोफिशिएंट क्या है। ठीक है ना। तो टर्म्स की अगर हम बात करें तो टर्म्स हमारा 7th स्टैंडर्ड में भी आपके मैथमेटिक्स में है कि टर्म्स क्या चीज़ होते हैं। 7th में भी हम डिस्कस उनको करते हैं, लेकिन हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स कोई भी जो एक्सप्रेशन है, कोई भी जो वैल्यूज है, अगर वो प्लस माइनस से सेपरेट हो रहा है, प्लस माइनस से अलग है, तो उसको हम टर्म्स कहेंगे। जैसे सपोज मानिए यहाँ पे ये प्लस लगा हुआ है और ये प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस या माइनस साइन कुछ भी हो सकता है, उससे प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया ये एक अलग टर्म्स हो गई और ये एक अलग टर्म्स हो गई और ये एक अलग टर्म्स हो गए। मतलब इन वैल्यूज के बीच में ये प्लस या माइनस साइन आता है तो वो टर्म्स को सेपरेट करता है। यानी कि कोई भी दो वैल्यूज हैं, अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल के लिए और बताता हूं। सपोज मान लो ये है हमारे पास 12xy। अब मैं यहाँ पे पूछूं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो सिंपली यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे हमारे? ओनली सिंगल टर्म्स होगा, ये एक ही टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज के बीच में ना तो ये प्लस साइन है और ना ही माइनस साइन है, तो इनमें से कोई भी साइन नहीं है इनके बीच में, तो इसलिए ये पूरा 12xy जो है ना एज ए सिंगल टर्म्स कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें टर्म्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये एक टर्म्स हो जाएगा 4x²y, एक टर्म्स हो जाएगा 3y²x, ये सेकेंड टर्म्स हो जाएगा, और लास्ट में जो 5 है वो थर्ड टर्म्स हो जाएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 3 टर्म्स आर देयर, है ना। दो वैल्यूज के बीच में प्लस या माइनस दिया है तो वो 2 टर्म्स माने जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, ये देखने x+2, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे? 2। ये एक टर्म्स ये हो जाएगा और एक टर्म्स ये हो जाएगा। इस तरीके से दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए। लेकिन अगर इसी चीज को मैं 2x लिख दूं तो ये सिंगल टर्म्स माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक सिंगल टर्म्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंगल टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यानी कि दो वैल्यूज के बीच में, है ना, उनके बीच में अगर माइनस या प्लस का साइन लगा हुआ है तो वो अलग अलग टर्म्स माने जाएंगे। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा साइन है, जैसे मल्टीप्लाई का साइन है या डिवाइड का, तो वो सिंगल टर्म्स माना जाएगा। है यहाँ पे देखेंगे 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, तो भी हम इनको एक सिंगल टर्म्स कंसीडर किए हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनको टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम कोई भी एक्सप्रेशन होगा हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक बहुत करता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फैक्टर्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, टर्म्स को आइडेंटिफाई किया, है ना। टर्म्स हमारा आइडेंटिफाई हो गया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो मैं उन टर्म्स को लिख देता हूँ अलग अलग। तो इसमें क्या क्या टर्म्स हैं? एक है हमारा 4x²y, अगला टर्म्स है 3y²x और अगला है 5। ये 3 टर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है हमारे। अब इनमें फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर का मतलब होता है कि ये जो टर्म्स है वो किस से मिलकर बना हुआ है। छोटे से छोटा वो यूनिट जिससे वो मिलकर बना होता है वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे ये टर्म्स है 4x² है, तो इसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? तो जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं उनको हम प्राइम फैक्टर फॉर्म में ब्रेक करेंगे, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। तो 4 को ब्रेक कर देंगे, हमारा हो जाएगा 2 × 2। x² यानी कि 2 टाइम्स है हमारा, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे x × x, और y सिंगल टाइम्स है तो हमने लिख दिया × y। तो क्या हो गया, ये फैक्टर्स हो गए इस टर्म्स के। यानी टर्म्स हमारा है 4x²y, इसके फैक्टर क्या हो गए 2 × 2 × x × x × y। ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। तो फैक्टर का मतलब होता है कि वो जो टर्म्स है वो कौन से नंबर से मिलकर बना है, कौन से वैल्यू से मिलकर बना है, और वो वैल्यू कितनी टाइम्स आ रही है। जैसे इसमें x 2 टाइम्स आ रहा है, y 1 टाइम्स आ रहा है, तो उनको अगर सेपरेटली अगर हम लिख देंगे तो वो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। क्लियर है। तो अब इसमें सेकेंड टर्म्स हमारे पास है, इसका फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 3 तो हमारा 3 रहेगा, y² 2 बार है तो हमने 2 बार y लिख दिया, और x 1 बार है तो x। तो ये टर्म्स के ये फैक्टर हो गए। क्लियर। लास्ट में क्या है 5 है, तो इसका फैक्टर 5 भी होगा, क्योंकि इसको हम ब्रेक आगे नहीं कर सकते, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये सब हमारे पास क्या है, ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं हमारे, और ये क्या है हमारे टर्म्स। तो इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आइडेंटिफाई करना है, तो हमने ये टर्म्स आइडेंटिफाई करे और उनके फैक्टर क्या हैं, इस तरीके से हम उनके फैक्टर को लिख दिया है।
ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया। फैक्टर का मतलब फिर से बता दे रहा हूं कि उस टर्म्स किससे मिलकर बना है, कौन से नंबर से मिलकर बना है। अगर कोई यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है, और अगर कोई वेरिएबल है तो वो कितनी बार आया है उस टर्म्स में, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, स्क्वायर है तो 2 बार आ रहा है, क्यूब है तो 3 बार आ रहा है, तो उसको इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक, अब लास्ट वन हमारे पास बचता है कोफिशिएंट। क्या बचता है? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट की बात अगर करेंगे तो बेसिक जनरली अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट हमारा उस टर्म्स का न्यूमेरिक वैल्यू को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ गए ना, न्यूमेरिक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी भी वैल्यू के आगे, किसी भी टर्म्स के आगे जो न्यूमेरिक वैल्यू लिखा है उसी को हम उसका कोफिशिएंट बोलते हैं। लेकिन हमारा कोफिशिएंट थोड़ा कभी कभी डिफरेंट तरीके से निकाल देते हैं, है ना, वो आगे हमारे एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो हम वहाँ पे आपको जो है ना क्लैरिफाई कर देंगे। फिलहाल आपको कोफिशिएंट के बारे में समझना है तो ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारे पास जैसे ये वेरिएबल वैल्यूज है, एक्स क्या है हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के आगे। तो हमें किसी भी टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना है, जैसे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालना है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और ये 4 जो है ना वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज हैं। तो न्यूमेरिक वैल्यूज को हम जनरली कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट 4 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 4। सेकेंड टर्म में कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 3, है ना। ये जो वाई स्क्वायर एक्स है ये हमारा वेरिएबल वैल्यूज हैं, और ये जो 3 है इधर ये क्या है? हमारा कांस्टेंट वैल्यूज। तो 3 हमारा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि टर्म्स, फैक्टर्स और कोफिशिएंट आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो हम उनको कैटेगराइज कैसे करते हैं। तो उनके टर्म्स के बेसिस पे हम उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे। डिग्री के बेसिस पे हमने आपको बता चुका है कि लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, क्यूबिक एक्सप्रेशन होते हैं। ये डिग्री के बेसिस पे है। लेकिन टर्म्स के बेसिस पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? हमारे मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल होते हैं और ट्राइनोमियल होते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अब हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोनोमियल, ठीक है, और बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ओके, तो इनको अब हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स अपने वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, एक, वन, ठीक है ना। तो मोनोमियल मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल। यानी कि इनमें सिर्फ केवल और केवल एक ही टर्म होगी। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो तो हम उसको मोनोमियल कहेंगे। जैसे अगर हम टर्म की बात करें तो सिंगल टर्म्स का हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x² y z, ये भी एक हमारा सिंगल टर्म माना जाएगा, है ना, क्योंकि इनमें प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ये पूरा एक ही टर्म माना जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? ओनली सिंपली 2x, ऐसा भी लिख सकते हैं। सिंपली 5, ये भी लिख सकते हैं। और हम बात करें तो -1/2x²y, ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, है ना। और बहुत सारे कई टाइप के हैं, लेकिन हमें सिर्फ सिंगल टर्म ही लिखना है, यानी कि 2 टर्म नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा लिख देंगे, है ना, 5x+2 लिख देंगे या -2 लिख देंगे, तो ये सिंगल टर्म नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ये एक टर्म ये हो जाएगा और एक टर्म ये हो जाएगा, ये 2 टर्म हो जाएगा, तो इसको मोनोमियल हम नहीं कहेंगे। तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है? सिंगल टर्म। क्लियर है? तो यहाँ पे देखेंगे तो आप ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है, 5 भी सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है। इस तरीके से हम सिंगल टर्म जो वाले एक्सप्रेशन है तो उनको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। क्लियर है ना? ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें केवल सिंगल टर्म हो उनको हम मोनोमियल कहेंगे। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल। तो बाइनोमियल की अगर हम बात करें तो बाइनोमियल मीन्स बाई, इसका वर्ड मतलब बाई होता है, तो बाई मतलब होता है 2, है ना। तो बाइनोमियल यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें 2 टर्म अवेलेबल हो, है ना, कम से कम 2, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, न कम न ज़्यादा, मतलब एग्जैक्टली 2 टर्म्स होना है हमारा। कितना होना है? एग्जैक्टली 2 टर्म्स होना है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने अगर बात करी x-2
ये हमारे दो टर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये x हमारा एक टर्म हो जाएगा और 2 जो है ना हमारा अलग टर्म्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x और 2 के बीच में माइनस साइन दिया हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए, तो यहाँ पे दो टर्म हो गए। समझ गए ना? ठीक। और 5x² प्लस या -1, हम कैसा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 100x² -10, ये भी हमारा एक बाइनोमियल है ना? इस तरीके से अपन कोई भी वैल्यूज लिख सकते हैं एक्सेट्रा। क्लियर है? यानी बाइनोमियल का मतलब होता है ऐसे एक्सप्रेशन जिनके अंदर दो टर्म हो, उनको हम बाइनोमियल कहेंगे। वैसे ये 7th स्टैंडर्ड में भी है, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं। आप हमारा वीडियोस को पूरा एंड तक देखेंगे ना, तो सारी चीज़ आपको वैसे भी क्लियर हो जाएंगी, रिवाइज करा देंगे। ठीक। अगला है हमारा ट्राइनोमियल। ठीक। ट्राई का मतलब होता है 3। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो उसको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। क्लियर? तो अगर 3 टर्म्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4x² + 2x - 5। ठीक। 4x² + 2x - 5, ये हमारे 3 टर्म्स हो गए, जिसमें देखेंगे तो ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है, तीनों अलग अलग टर्म्स हो गए। ठीक। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे और लिख जाएंगे हमारे पास 10x² + 5y² + 2z, ये भी हमारा एक 3 टर्म्स वाला हो गया एक्सप्रेशन, तो इसको भी हम ट्राइनोमियल कहेंगे। देखो ये 3 टर्म हमारे पास हो गए कि नहीं हो गए? तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, है ना? और एक टर्म है, यानी कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल। जिसके अंदर 2 टर्म है एक्सप्रेशन तो उसको बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल। लेकिन कभी कभी हमारे पास 3 से ज़्यादा भी टर्म आ जाते हैं ना, कभी कभी हो जाता है ऐसा कि मोर देन 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म से ज़्यादा वाले एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? उसको सिंपली हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम? पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, है ना? तो उसको हम सिंपली पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी कि इफ एनी एक्सप्रेशन हैव मोर देन 3 टर्म्स देन दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल ये समझ में आ गए होंगे। Now we are discussing like terms and unlike terms. Okay, and we already discussed the different types of polynomials. That's like that: monomial, polynomial, binomial, trinomial, like that. Okay. Now we're discussing like terms or unlike terms. Okay, in any expressions, how many are like terms are there, or how we identify the like terms. Okay, so like terms identification of like terms is very easy. Okay, like terms means the power of variables should be same in each and every terms. How many variables are available doesn't matter. There may be 2 variables, there may be 3 variables, there may be 4 variables, but in each and every terms the power of variable should be same. Okay, power should be same. What are the coefficients? There is no problem. Coefficient may be anything. There may be positive, negative, there may be different, there may be same, doesn't matter. But what we have to see, if the variables power are same in all the terms, then we can say they are like terms. Okay, and if powers are different, then what we have to say? Definitely they are unlike terms. Okay, so now we are giving some examples of like terms. So you can see here, suppose I write here 2x² and -5x²। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं या नहीं हैं। तो लाइक टर्म्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो वेरिएबल्स अवेलेबल हैं उनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो हम पहली टर्म्स की बात करते हैं। तो इस टर्म्स में वेरिएबल क्या है? x एंड y, 2 वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे भी x एंड y 2 वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स तो दोनों में सेम हो गए। अब दोनों टर्म्स में वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो अगर इस टर्म्स में x की पावर है वो है 2 और y की पावर है 1, इस टर्म्स में चेक करो, x की पावर है 2 और y की पावर है 1। पावर मीन्स यहाँ पे जो नंबर होता है ना, उसको अपन पावर बोलते हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे। तो देखेंगे x की पावर भी दोनों में सेम है, y का पावर भी दोनों में सेम है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, देखो यहाँ कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट है -5, तो कोफिशिएंट अलग हो सकता है, मैं बताया ना आपको, लेकिन
वेरिएबल्स की पावर सेम होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 2x² एंड -5x² आर द लाइक टर्म्स। ऐसे कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। मैं आपको एक और लिख दूं, पेयर और लिख देते हैं, -1/2x एंड 100x। ये भी दोनों लाइक टर्म्स है। -1/2x एंड 100x आर ऑल्सो लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ओनली x और यहाँ पे भी ओनली x, दोनों में पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो लाइक हो गया, है ना। कोपिशेंट यहाँ -1/2 है, यहाँ पे 100 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोपिशेंट अपना कुछ भी हो सकता है। लाइक टर्म्स को हमें चेक करना है, तो लाइक टर्म्स को हमें कैसे चेक करेंगे? वेरिएबल्स के बेसिस पे। वेरिएबल्स की पावर सेम है, सारे वेरिएबल्स सेम अवेलेबल हैं, तो वो हमारा लाइक टर्म्स हो जाएगा। और अगर वेरिएबल सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे एग्जांपल्स है, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। मैं आपको कुछ 1-2 एग्जांपल और लिख दे रहा हूं। ओके, दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ लाइक टर्म्स। हियर इज आल्सो xy एंड हियर इज आल्सो xy। क्लियर? ऐसे आप कई सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में, है ना। ये हमारा लाइक टर्म्स हो गया, है ना, अनलाइक टर्म्स। तो अगर हमारा वेरिएबल का पावर सेम नहीं है या वेरिएबल ही सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनलाइक टर्म्स हो जाएगा। तो इसका तो एग्जांपल्स कई सारे आप ले सकते हो। जैसे मैं बताऊं आपको, 5x² एंड 2xy²। अब यहाँ पे इस टाइप में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, वो बोलते हैं ये भी xy है और ये भी xy है तो सेम हो गया। नहीं, वेरिएबल सेम है लेकिन वेरिएबल की पावर सेम नहीं है। अब देखो, इसमें x का पावर है 2 और y का पावर है 1। इस टर्म्स में x का पावर है 1 और y का पावर है 2। तो वेरिएबल सेम तो है लेकिन पावर डिफरेंट है। आप देखो, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है ना। यहाँ पे कितना है? 1 है तो यहाँ 2 है, तो डिफरेंट हो गया ना पावर्स। यानी दोनों टर्म्स में x की पावर सेम होनी चाहिए, दोनों टर्म्स में y की पावर सेम होनी चाहिए, तो हम लाइक बोलते। या पावर डिफरेंट है तो ये अनलाइक हो गए। समझ गए? ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना। -5xyz एंड 2yz, ये भी एक अनलाइक टर्म्स हो गया। वेरिएबल भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, एंड एक्सेट्रा। इस तरीके से आप चाहो तो कितने भी अनलाइक और लाइक टर्म्स को वो कर सकते हो, ऐड, है ना, बना सकते हैं। हाँ, अब लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, हमें कई बार क्या होता है, हमें एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, हमें एक्सप्रेशन को प्लस भी करना पड़ सकता है, हमें एक्सप्रेशन को माइनस भी करना पड़ सकता है, डिवाइड भी करना पड़ सकता है। यानी कि when we have to divide, subtract, addition और multiplication the expressions with each others, तो क्या बात आपको ध्यान रखनी है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको एक चीज ध्यान ये रखना है कि हम जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, दो एक्सप्रेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो केवल लाइक टर्म्स का ही कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को ना हम ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? अनलाइक टर्म्स को ना हम ऐड कर सकते हैं ना ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स और वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म्स। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमारा किसी का भी हो सकता है, चाहे लाइक हो या अनलाइक हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जब हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कंसेप्ट आएंगे तो हम आपको इस चीज को और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 9.1। ओके, 9.1, व्हाट इज द क्वेश्चंस? फर्स्ट वी अंडरस्टूड, आइडेंटिफाई द टर्म्स। क्या आइडेंटिफाई करना है हमको? टर्म्स बताना है और उनका कोपिशेंट बताना है, एंड देयर कोपिशेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यानी हमारे पास ये देखेंगे 1 से लेकर 6 तक ये एक्सप्रेशन है। इन एक्सप्रेशन में हमें ये बताना है कि कितना टर्म्स है और कितने इसके कोपिशेंट्स है ना, और इनके कोपिशेंट क्या क्या है। तो वी ऑलरेडी डिस्कस द हाउ टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। टर्म्स का मतलब होता है कि कोई भी दो वैल्यू के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन होता है तो वो अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं। समझ गए? तो हम अब देखते हैं यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, तो चेक करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब ये एक टर्म्स हो गया और ये अलग टर्म्स हो जाएगा, दो टर्म्स इसमें हो जाएंगे। यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक टर्म्स होगा, ये एक टर्म्स होगा, ये यहाँ पे 3 टर्म्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 बार प्लस साइन आ गया है तो सबको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ पे ये एक सिंगल टर्म्स, फिर ये सेकेंड टर्म्स और ये थर्ड टर्म्स। हियर ऑल्सो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टर्म्स हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3, लास्ट में 1
2 3। तो ये हमारे टर्म्स है। तो अब इनको हम लिखते हैं टर्म्स को, ठीक है ना। तो इसमें हमारे टर्म्स क्या क्या हैं, एक है 5xy(z²), कॉमा दूसरा टर्म्स है -3zy। हाँ, अब एक चीज़ ये आपने ध्यान देना है आपको कि देखिए बीच में माइनस साइन था तो हमने माइनस को यूज़ किया। अगर यहाँ प्लस होता तो हम प्लस नहीं लिखते। माइनस अगर है तो आपको माइनस लेना है, लिखना है, कंसीडर करना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके टर्म्स पता चल गए, दो टर्म्स है इसमें, फर्स्ट टर्म्स और सेकेंड टर्म्स। अब इनका कोफिशिएंट, तो टर्म्स का कोफिशिएंट जब बात करते हैं तो उनका जो न्यूमेरिक कोफिशिएंट होता है सबसे आगे, वो हमें लिखना रहता है। तो इसके आगे न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पे क्या है -3। तो इस टर्म्स का न्यूमेरिक कोफिशिएंट है 5, कॉमा इसका न्यूमेरिक कोफिशिएंट है -3। इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म्स हो गया 1, है ना, कॉमा दूसरा टर्म्स हो जाएगा x, तीसरा टर्म्स हो जाएगा x²। ये हमारे टर्म्स अलग अलग हो गए। अब 1 का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है तो कोफिशिएंट बोलने से वही हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें x के आगे कुछ भी नहीं है तो हमने x के आगे कुछ नहीं होता तो 1 कोफिशिएंट ले लेंगे। x² के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पे भी हम 1 ही कोफिशिएंट ले लेंगे। यानी कि वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लेना है ना। कोई नंबर्स नहीं होने से 1 आपको यूज़ करना है, अदरवाइज वो जो नंबर है वही आप लोगे, ठीक है। इसमें ध्यान दो, तो इसमें जो कितने टर्म्स हैं, 4x² y² एक टर्म्स हो गया, दूसरा टर्म्स है -4x² y² z², और तीसरा टर्म्स है z², ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारा कोफिशिएंट, या 4 है तो ये 4 लगा देंगे तो ये हमारा 4 कोफिशिएंट हो गया। सेकंड में क्या है -4, तो ये देखो -4 हो गया। थर्ड में क्या है, कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। जैसे आपको बताए थे कुछ भी वेरिएबल्स वैल्यू नहीं होगी तो आप 1 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बात करेंगे तो ये एक टर्म्स हो जाएगा 3, दूसरा टर्म्स हो जाएगा -pq, तीसरा टर्म हो जाएगा qr, और चौथा टर्म्स हो जाएगा -rp। समझ गए, माइनस साइन है तो आपको यूज़ करना है, और अगर प्लस साइन है तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। ये टर्म्स पता चले। अब इनका कोफिशिएंट, तो इसका कोफिशिएंट तो वो 3 खुद ही हो जाएगा क्योंकि कोई वेरिएबल ही नहीं है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट, यहाँ आगे कोई भी नंबर नहीं है तो 1 ले लेंगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो इसलिए हम इसको -1 कहेंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो -1 ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए लास्ट वाला, यहाँ पे पहला टर्म्स हमारा xy2 है, दूसरा टर्म्स y2 है, और तीसरा टर्म्स माइनस का xy, ठीक है ना। तो पहले टर्म्स में नंबर क्या है, इसको ध्यान देना। देखो xy2 को हम यहाँ पे देखेंगे, xy2 है तो इसको हम 1/2 इंटू x ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपको क्या ऐसे समझने में कोफिशिएंट पता चल जाता है। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि 1/2 कोफिशिएंट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोई स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकता है तो मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 1/2 हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन अगर कहीं पे भी है तो हमारा ये 1/2 कोफिशिएंट इसका हो गया, और इसका हो जाएगा 1/2, और इसका हो जाएगा -1। समझ गए, कोई नंबर नहीं है तो 1 ले लो सिंपली, तो -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। लास्ट 1 बचा है उसको भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.3a, एक पहला टर्म्स हो गया, -0.6ab ये दूसरा टर्म्स हो गया, कॉमा 0.5b ये तीसरा टर्म्स हो गया, ठीक है। टर्म्स पता चल गया 3। इसमें क्या है 0.3 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है -0.6, इसका कोफिशिएंट क्या है 0.5। तो इस तरीके से कोफिशिएंट और टर्म्स या उनका क्या कोफिशिएंट है एक्सप्रेशन में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। मतलब ये है इनका कि ये जो ढेर सारे पॉलिनोमियल हमारी बुक्स में से मैं ऐसे अलग अलग करके लिख दिया हूँ, इनमें आपको ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल जो है इनमें से मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ वीडियो की शुरुआत में ही, ये आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देख पाया है तो आप वीडियो को रिवाइज जो है ना बैक करिए दोबारा से, और उस मोनोमियल बाइनोमियल वाले कंसेप्ट को दोबारा से देखिए,
ठीक है, फिर आप यहाँ आसानी से समझ जाएंगे। ठीक, तो मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, अब इनको मैं क्या करूँगा, इसमें इन्हीं पॉलिनोमियल के बीच में जो स्पेस है मैं इनका पहला पहला लेटर लिख दूंगा। यानी कि अगर कोई भी मोनोमियल है तो मैं उसका m लिख दूंगा, बाइनोमियल है तो मैं b लिख दूंगा, ट्राइनोमियल है तो t लिख दूंगा। और अगर वो इन तीनों कैटेगरी में फिट नहीं है तो उसके सामने मैं ऐसे क्रॉस लगा दूंगा, है ना। रीजन तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला x प्लस वाई, तो यहाँ प्लस आ गया, मतलब दो टर्म्स हो गए, x और y दोनों अलग अलग टर्म्स हो गए, टू टर्म्स हो गए। टू टर्म्स का हमारा क्या होता है, बाइनोमियल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक। 1000 ये और कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा मोनोमियल हो जाएगा। एक ही टर्म्स है तो मोनोमियल। यहाँ पे x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स फोर, तो 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स हो गया। 4 टर्म्स हो गया, मतलब हमारा ना तो मोनो है, बाई है, ट्राई कुछ भी नहीं है इनमें से, तो ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा। डू नॉट फिट इन एनी दीज ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो 7 एक टर्म्स हो गया, y हो गया 5x, यानी कि 3 टर्म्स हो गया यहाँ पे, ठीक। तो 3 टर्म्स हो गया, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल, ठीक है। 2y माइनस 3y स्क्वायर, इसमें सिर्फ 2 ही टर्म्स है, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, तो यहाँ पे देखो 3 टर्म्स हो जाए, तो ये हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने इस रफ कॉपी में, अपने जो फेयर कॉपी है, जैसा अपनी मर्जी है लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप देखो 5x माइनस 4y प्लस 3xy, तो ये 3 टर्म्स हो गए, है ना, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। 4z माइनस 15z स्क्वायर, तो ये 2 टर्म्स यानी कि बाइनोमियल हो गया। AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA, ये तो 4 टर्म्स हो गया, तो ये किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठेगा, ना तो बाइनोमियल है, ना मोनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, समझ गए ना। PQR, इस सिर्फ एक ही टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा, ठीक। P स्क्वायर क्यू प्लस PQ स्क्वायर, 2 टर्म्स है, तो क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गया। 2P प्लस 2Q, ये भी 2 टर्म्स हो गए, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। तो इस तरीके से आप मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब आपके कितनी टर्म्स हैं उसके बेस पे बोल दो। मोनो मतलब एक टर्म्स वाले को मोनो बोलेंगे, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल बोलेंगे, और 3 टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल बोलेंगे। और 3 से ज्यादा टर्म्स हैं तो इन तीनों में से कोई नाम नहीं कहेंगे, तो वो हमारा डू नॉट फिट इन दीज 3 कैटेगरीज में आ जाएगा। वैसे बताया हूं कि 4 टर्म्स वाले को क्या कहते हैं, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। ऐड द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास डिफरेंट एक्सप्रेशन है, उनको हमें ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करेंगे तो सिर्फ लाइक टर्म्स का ही हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि जैसे मान के चलिए, अब मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 5x प्लस 5y है, सपोज ये बीच में प्लस लगा है तो हम ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए 5x और ये 5y दोनों कैसे हैं, ये अनलाइक टर्म्स हो गए। तो अनलाइक टर्म्स है तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे हैं वैसे ही रहेंगे, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इसके y की जगह अगर मैं यहाँ x कर देता हूँ, तो ये 5x और ये 5x मिलकर 10x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 5x दोनों लाइक टर्म्स हो गए, और जब लाइक टर्म्स होते हैं तो इनके कोफिशिएंट को हम प्लस कर लेते हैं या माइनस कर देते हैं। तो 5 और 5 मिलकर कितना हो गया, 10, और जैसा x है वैसा ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको, 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, दोनों लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे देखेंगे तो, लेकिन अब बीच में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब है हम दोनों में से एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1। बाकी के वैल्यू जो वेरिएबल्स वाले हैं वो वैसे ही रहेंगे, वेरिएबल्स वाली वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे एक्सप्रेशन का, तो जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होगा, उनके कोफिशिएंट्स में, समझ में आ गए। तो और वेरिएबल्स जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। कई बार स्टूडेंट पता है क्या कर देता है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी, तो ये एक्स 4 कर देगा और वाई 2 कर देगा, यानी पावर को भी ऑपरेट कर देते हैं। पावर का कुछ नहीं करना है हमें, वेरिएबल्स की पावर जैसी है वैसी ही रहेगी, सिर्फ कोफिशिएंट को ऑपरेट करना है। कोफिशिएंट प्लस होंगे या फिर माइनस होंगे, ठीक है ना। तो अब हम जो है ना इसके क्वेश्चंस जो है बनाते हैं,
ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पहले कितने एक्सप्रेशन है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, यानी कि 3 एक्सप्रेशन है। इनको हमें ऐड करना है। ऐड का मतलब है प्लस लगाना है बीच में। तो हमने क्या कर दिया, तीनों के बीच में प्लस, यानी ए बी माइनस बी सी फर्स्ट एक्सप्रेशन, प्लस का साइन लगाए सेकंड एक्सप्रेशन बी सी माइनस सी ए, फिर कॉमा की जगह यानी हमने प्लस लगा दिया सी ए माइनस ए बी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी एक्सप्रेशन हमें ऐड करना है तो उनके बीच में हमने प्लस साइन लगा देना है। ऐड का मतलब प्लस साइन। अब आप यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो ऐसा है कि डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर लो, एक तरीका ये है कि जितनी भी लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिख दो, है ना। डायरेक्ट सॉल्व करने से भी बनता है और लाइक टर्म्स इनको एक साथ लिखने से भी बन जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लाइक टर्म्स को आपको बता देता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे ढूंढो लाइक टर्म्स को, यानी कि ये पहला टर्म्स कैसा है, ए बी, ठीक है ना। तो इस ए बी जैसा कोई और दूसरा टर्म है इसमें पूरा चेक करो। तो ये देखेंगे, चेक करते जाएंगे तो लास्ट में ए बी मिला, वो कैसा है, नेगेटिव, तो यानी कि माइनस ए बी हो गया। ये दोनों टर्म्स लिख गए हमारे। अब यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का बी सी दूसरा लिख दो, है ना। तो ये दूसरा बी सी हो जाएगा। और कहीं बी सी है यानी उसके बाजू में ही है, तो ये प्लस का बी सी हो गया, यानी कि ये दोनों टर्म्स भी हमने लिख दिए। फिर ये सी ए और ये सी ए दोनों भी एक जैसे हैं, तो ये माइनस का सी ए और ये प्लस का सी ए। अब इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें देखेंगे तो लाइक टर्म्स इधर उधर भी लिखे हैं हमारे, एक टर्म्स यहाँ है तो दूसरा लाइक टर्म्स उधर लिखा है। इसमें क्या डिफरेंस हो गया, लाइक टर्म्स ए बी और ए बी पास पास में लिख दिए, बी सी और बी सी पास पास में हो गया, सी ए और सी ए पास पास में हो गया, यानी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया है हमने। समझ गए क्यों लिख दिया है, क्योंकि मैं बताया हूँ लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 प्लस का 1 माइनस का होने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है ना। सेम वैल्यू अगर है, साइन अपोजिट है, तो हम उनको कैंसिल भी कर सकते हैं सिंपली। तो हम क्या कह सकते हैं, ये प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल हो गया, ये माइनस का बी सी प्लस का बी सी कैंसिल हो गया, ये माइनस का सी ए और प्लस का सी ए कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब 0 बच रहा है। एक तरीका यह है कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दो। मैंने यहां पे लिख देना है ना, राइट लाइक टर्म्स टुगेदर, मतलब एक साथ लाइक टर्म्स लिखे फिर हमने कैंसिल किया, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि इन दोनों स्टेप को, यानी कि इनको आप हटाओ। अब यहीं से देखो, यहां पे आप चेक कर लो, यह ए बी है पहला टर्म्स, पूरे एक्सप्रेशन में चेक कर लो कोई ए बी जैसा है। अब यहाँ पे प्लस का ए बी है या माइनस का ए बी, तो यहीं पे काट दो। समझ गए, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। मैं इसको अभी दूसरा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पास आंसर आ गया, यानी कि इनको ऐड करने से 0 आ जाएगा। अब देखो इसको ध्यान दो, इसमें भी वही हमें करना है, एक्सप्रेशन के बीच में प्लस लगाना है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है हमारा, a माइनस बी प्लस ए बी, ये प्लस लगा दिया हमने। फिर है हमारा b माइनस सी प्लस बी सी, फिर हमने प्लस लगा दिया c माइनस ए प्लस ए सी। अब ये देखो शुरुआत में a लिखा है, तो और कहीं a है क्या, है, यहाँ पे a है और ये है। समझ गए, ये a और यहाँ पे माइनस, ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यानी प्लस का a माइनस का a हमने कैंसिल कर दिया। ये माइनस का b चेक करो, और कहीं है, यहाँ पे है ये प्लस का b, ये माइनस का b है और ये प्लस का b, तो ये भी दोनों सेम टर्म्स हैं और साइन अपोजिट है, यानी कि एक जैसे वैल्यू है, साइन अपोजिट है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो माइनस b ये प्लस b कैंसिल हो गया। a b कहीं और है और कहीं a b नहीं है, फिर आ जाओ इस पे c, माइनस का c और ये प्लस का c हो गया, ये बी सी और c बच गया। तो क्या क्या बच गया, ए बी बी सी और ए सी, या सी ए भी लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो। यानी हमने इसमें क्या किया था, राइट लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा हमने और फिर हमने कैंसिल किया। इसमें हमने क्या किया, हमने उसी में ढूंढा लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ हैं, अगर वो कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो। चूंकि कैंसिल कब होते हैं, जब दो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट एक जैसे हो जाते हैं और एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो कैंसिल हो सकती है ना। लेकिन उनके कोफिशिएंट अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो कैंसिल नहीं होंगे, या तो उनमें एडिशन होगा या फिर उनमें सब्ट्रैक्शन होगा। कैंसिल एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, जब उनके कोफिशिएंट भी सेम होंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे तो सबके कोफिशिएंट सेम थे, इसलिए वो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, जो बच गया वो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ ए बी है तो ये बी सी है, ये बी सी है तो ये सी है, मतलब तीनों अलग अलग मिले कि नहीं मिले, तो इसको हम आगे ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से लाइक टर्म्स को हम ऐसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, 3rd and 4th, इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाएगा हमारा। तो इनमें भी हमें वही ऐड द फॉलोइंग करना है। तो ऐड का मतलब बीच में प्लस साइन लगाना है, और जो लाइक टर्म्स हैं उनमें एडिशन हो रहा है क्या है चेक करते हैं अपन। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला एक्सप्रेशन लिखेंगे 2p² माइनस 3pq प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, कॉमा की जगह हमने प्लस लगा दिया। दूसरा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p²q²। अब इसमें हमें ये देखना है कि लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं। तो हमने पहली शुरुआत में ये देखा कि ये p²q² वाला टर्म्स है, कोफिशिएंट तो जो भी होगा देखेंगे अपन। ये p²q² और कहीं है, चेक करो, इसमें लास्ट में है देखो, ये भी p²q² है और ये भी p²q² है, तो दोनों लाइक टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे कोफिशिएंट है 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट है -3। तो अब ये बताओ, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो इनको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो इनका कोफिशिएंट +2 और ये -3, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे, यानी एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है, तो हम ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये -1p²q² हो जाएगा। यानी कि ये दोनों लाइक टर्म्स को हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये -1p²q² आ गया। अब ये तो हो गया सॉल्व। अब ये pq वाला टर्म्स और यहाँ पे देखो pq वाला टर्म्स है, ये दोनों pq वाले टर्म्स है। ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 7, यानी माइनस का 3 है और यहाँ पे प्लस का 7। इसका कोफिशिएंट -3 और इसका कोफिशिएंट +7, तो क्या मिलेगा, ये 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4pq। क्लियर? अब ये भी हो गया और ये भी हो गया, क्या बचा, सिर्फ यही 2 टर्म्स बचे, तो 5 + 4 सीधा सीधा 9 हो जाएगा। आगे अब देखेंगे तो आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि सब अनलाइक्ड आ गए, तो यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप एडिशन आपको समझ में आ गया, लाइक टर्म्स पहचानना हो गया और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, यानी प्लस होना है कि माइनस होना है, ये सब क्लियर है, तो ये बहुत आसान है। अदरवाइज आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं अपन। सो l² + m², यह आ जाएगा m² + n² + l², ये हो गया। अब देखो l² यहाँ है, l² वाला दूसरा टर्म्स कहीं ढूंढो, लास्ट में है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, ये भी l² और ये भी l², दोनों लाइक टर्म्स हो गए। तो अब यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना, 1, यहाँ पे कोफिशिएंट है कितना, 1, दोनों ही प्लस के हैं, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2l²। सिमिलरली ये m² और ये m², 1 और 1 मिलके ये भी 2 हो जाएगा, 2m² और ये 2n², क्योंकि ये भी लाइक है ना, ये दोनों लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं और ये दोनों लाइक है। तो लाइक टर्म्स में क्या कर रहा है, यहाँ पे सब प्लस है तो सब्ट्रैक्शन तो होना नहीं है, तो सबको प्लस ही करना है। अब प्लस किसको करना है, उनके कोफिशिएंट को, तो सबका कोफिशिएंट 1 1 था, है ना, इसलिए हमारे पास ये आ गया। तो ये स्टेप हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपको ये एडिशन जो है ना, एक्सप्रेशंस कहीं पर अगर गिवन है तो आप एडिशन कर सकते हैं। बहुत इजी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे और आपको समझ में आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशंस। इसका मतलब ये होगा, पहले हम इसको लिखेंगे, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर हम इसको लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए अपन शुरू कर देते हैं। तो इसमें पहले ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, 12a - 9ab + 5b - 3, इस सेकेंड एक्सप्रेशन पहले लिखा। अब माइनस का साइन लगाएंगे, फिर हम ये वाला लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a - 7ab + 3b + 12। अब देखो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, आप भी बता सकते हैं कौन सा मिस्टेक की है, आप जहाँ तक ये नहीं पहचान पाएंगे, है ना। तो ये मिस्टेक ये है कि हमने बीच में माइनस साइन ये लगाया है ना, यही तो है ना हमारा सब्ट्रैक्ट करने वाला।
तो ये जो माइनस साइन लगाएंगे, अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, यानी कि आगे हमने इधर आगे ब्रैकेट नहीं यूज़ किया, यहाँ पे जो ब्रैकेट हमें लगाना चाहिए था ऐसे करके, ये ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। मान लो सॉल्व करते करते दिमाग से निकल गया तो ये माइनस साइन सिर्फ इसी के साथ यूज़ हो जाएगा, बाकी के साथ में यूज़ नहीं हो पाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, हमारा क्वेश्चंस भी मतलब हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमें करना क्या है कि ये जो जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है माइनस के बाद जो लिखोगे आप, उसमें आप ब्रैकेट जरूर लगाइए, यानी कि यहाँ पे ये ब्रैकेट जरूर लगेगा। अब ब्रैकेट लगा दोगे तो इससे क्या पता चलता है कि ये माइनस साइन जो है वो सबके साथ में मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, अब सिंपली इसमें तो कुछ करना नहीं है, तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, क्लियर। ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4a हो जाएगा, ये प्लस का 7ab हो जाएगा, ये माइनस का 3b हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से हमारे अंदर वाले वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे माइनस का मल्टीप्लाई करने से। अब इसमें ये ढूंढना है आपको लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ है। जैसे पहला टर्म्स a वाला है ना, तो a वाला है और ढूंढो कहाँ पे a वाला है, ये आ गया, और कहीं है नहीं है। तो ये 12 प्लस का है और ये माइनस का 4 है। कोएफिशिएंट की बात करें तो प्लस का 12 माइनस का 4, प्लस 12 माइनस 4 कितना होगा, 8। तो ये हो जाएगा 8a, क्लियर है। यानी कि इन दोनों को सॉल्व करने से 8a आ जाएगा। अब ये कौन सा है, ab वाला। अब ab वाले ढूंढो, ab वाले कहाँ हैं, ये आ गया, ये देखो। तो यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, लेकिन ये माइनस का 9 है और प्लस का 7 है। तो 7 और 9 का डिफरेंस तो 2 आना है, और ये बड़ा होने से -2ab बचेगा। आप अपने हिसाब से डिफरेंस कर सकते हो। फिर b वाले ढूंढो, b वाले कहाँ हैं, ये देखो, ये प्लस का 5 है और ये माइनस का 3, तो 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो 2b। अब कौन सा बचा है, ये वाला, ये 3 माइनस का और ये माइनस का 12, तो ये हो जाएगा -15। ठीक, अब ये देखें कि ये a वाला है, ये ab वाला है, ये b वाला है और ये 15, तो सब अलग अलग हो गए। अब तो आगे होगा नहीं एडिशन, तो यही हमारा स्टेप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय आपको ध्यान ये देना है कि लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ हैं और उनके कोएफिशिएंट्स क्या हैं। उनके कोएफिशिएंट प्लस हो रहे हैं या उनके कोएफिशिएंट माइनस हो रहे हैं, उसके हिसाब से वो आगे का टर्म्स हमारा, आगे का जो है स्टेप्स हमारे आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट जो है सब्ट्रैक्शन हो गया है। हम अगला सब्ट्रैक्शन कर, दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4। बी पार्ट में स्किप कर दिया हूं। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि बी पार्ट आप समझ जाएंगे तो आप अपने से खुद से सॉल्व कर लेंगे। मैं सी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत लेंदी है, हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम होगी, तो मैं सी कर दे रहा हूं। बी पार्ट आप अपने होमवर्क समझ के कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अब समझ में आ जाएगा तो आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग कर लेंगे उसको, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे जरूर। ठीक है, चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले हम लिखेंगे, है ना, तो इसको हम पहले लिखेंगे। ये हो जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये माइनस साइन आ गया सब्ट्रैक्ट करने वाला, और ये ब्रैकेट हमारा ज़रूरी है। ठीक, अब ये वाला लिखेंगे, तो 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर, अब इसमें कुछ नहीं करना है, तो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2p स्क्वायर 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यानी माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई होगा सारी टर्म्स में, और सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये प्लस का था तो ये -4p स्क्वायर q हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3pq
और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5p²। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 8p। ये प्लस है तो माइनस होगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जैसे हमने माइनस साइन का ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज में मल्टीप्लाई किया तो अंदर वाली वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब हमें ये करना है कि इनमें लाइक टर्म्स कहाँ है, अनलाइक टर्म्स कहाँ है, उनको ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो हमें देखना है। तो शुरुआत हम पहले से ही करते हैं। 18 यानी कि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म और कहीं ढूंढो कहाँ है। इसमें देखेंगे तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है और कहीं तो है नहीं। ये +18 है और ये +10 है, तो दोनों प्लस हैं तो दोनों मिलके 28 हो जाएंगे। क्लियर है। अब p वाला टर्म्स ढूंढो, क्योंकि ये p वाला है ना, तो p वाला टर्म्स ढूंढो। ध्यान देंगे p वाला टर्म्स है ना, इधर आके है ये 8p, ये है माइनस का 3p और ये है प्लस का 8p। तो देखो ये +8 बड़ा है, -3 छोटा है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 8 में से 3 जाएगा तो प्लस का 5 यानी कि 5p हो जाएगा। p भी ओवर हो गया। अब q वाला ढूंढो। q वाला देखेंगे उसी के बाजू में, देखो ये माइनस का 11q और ये देखो माइनस का 7q। ये -11 है, ये भी -7 है, दोनों माइनस होने से -18 हो जाएगा, तो -18q हो गया। ठीक है। अब pq वाले ढूंढो। pq कहाँ है, ध्यान दो तो ये मिला, देखो है ना, ये +5pq और ये प्लस का 3pq, यानी प्लस का 5 और प्लस का 3 मिलके प्लस का 8pq हो जाएगा। अब ये वाला ढूंढो pq²। pq² वाला ध्यान देंगे तो pq², ये देखो ये आ गया, माइनस का 2 इधर है, माइनस का 5 इधर है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 7pq²। अब क्या बचा ये, तो ये दोनों तो बाजू बाजू में लिखे हैं, ये +5 है, ये -4 है, तो प्लस का 1 बचेगा p²। सारे टर्म्स यूज हो गए है ना। तो इस तरीके से हमने मार्क किया है, तो आप भी मार्क कर सकते हो, तो इसे पता चल जाएगा सारे टर्म्स हमने कवर कर लिए हैं। तो अब यहाँ ध्यान देंगे ये कांस्टेंट है, ये p वाला है, ये q वाला है, ये pq वाला है, तो ये सब अलग अलग टर्म्स आ गए, तो इनको आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो यही स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक और अनलाइक टर्म्स का कर सकते हैं। मतलब अनलाइक टर्म्स को तो हम ऐड कर ही नहीं पाएंगे, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट और प्लस और माइनस करते हैं। तो ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th 10th में आगे कंपटीशन एग्जाम में, आप अगर नवोदय के एग्जाम दे रहे हो या सैनिक स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, तो भी आप जो है ये आपका कंसेप्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ हमारा ये 9.1 एक्सरसाइज फिनिश हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आपको अगर मेरे स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड्स अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिए, जिससे वो लोग भी हमारे इस वीडियो से फायदा ले सके। थैंक यू वेरी मच।